Good evening, everyone. Those who have joined me in Facebook Live, as well as to those who have joined me on the online platforms, you are all most welcome to my program, Meet the Winners. As you know that this program that I conduct, this comprises of three different types of categories. The first type of the category is the one in which I call the different personalities from the real life personalities, maybe academic or non-academic, but they have they are doing something to the nation, community, and at the end to the country. So we usually pick them up and bring them over here and discuss and talk about their life history, because we know that the life history is going to help the others, whether the person is known or not, but history is to be followed if it is good, and to be different from that which he has been suffering from. So these are the means of spreading the good things from the experience of the person who have already gone through this one. So this is one category. And the second category, I do felicitate the people from any community who have succeeded in their board exams, and I do facilitate them. But if this felicitation is different type, I don't just give them lectures. I want to make them feel and believe that you have become special and you have to take responsibility for the future generation. So this is one of the category I do. And the third type of program that I do is, which is a panel discussion on the burning issues of education. So these are the three categories I do. But today is a special day, all of our country in India, we are celebrating Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti, Gandhi is being remembered for some of what he have already done. Gandhi is so popular not only in India, but he's also popular in foreign countries like America, Canada, especially in the Gulf countries and the Arab countries. Our Gandhiji is very, very famous. I'm going to just mention the quote of Einstein. Once Einstein said that future generation would never believe that a half-naked fakir like Gandhiji once walked on the earth where we live in. A man who has given his everything but never take back anything in return. I salute this great soul from the very deep of my heart. So look here, it is the Einstein who is talking such a good words for why? Because he has done something. His life is so important for the others, and they are appreciating his work we have done. So my program is actually taken a part of that, where I am bringing the people from the different category of life, and through their life, I want to inspire and motivate to the fellow people, existing people in the schools, college, and university. So this is a very important program which people do not realize. Everybody, when you are going to buy a mobile, you take a review. What is the review? Review is someone has gone through, and then you take the review and buy. In even the Quran, there are so many stories of the previous nations. This is for what? This is for just to go through them, understand what they have done good, what they have not done good. So my program is exactly similar to that, in which I bring the people from different categories, maybe engineer, doctors, and our today's guest is something very, very different and something very, very special. My today's guest is not from academia. He is from an administrative service. Administrative service from West Bengal, which we normally call WBCS. So I'm going to discuss with him and talk with him his life journey from very childhood to the level he has achieved, and what he has gone through. We will be trying to find it out through the questions. So the pattern of my program will be like that. I will be asking question to him, and then he will be answering, and it will go through till 45 minutes. And after that, I will be giving a chance to the audience to ask question to him. So without any delay, I would like to introduce our today's guest, Syed Anjum Roman. Sir, most welcome to you in my program. In spite of your busy schedule,
you gave me time. I'm very much thankful to you. So you are welcome, sir. Thank you. Thank you very much. Good evening to you and everybody who is actually watching this program. And I am really indebted to you because you have chosen me. I don't know why you have chosen me, because I don't think that I have achieved anything which may categorize as being celebrity or something like that. I don't think so. But all the same, I am very much thankful to you that you have considered my name, or you have chosen me to share my views. Thank you very much. सर हर शख्स को किसी चीज की कीमत क्या है देखने वाले जानते हैं, जैसे कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. सो हु यू आर, द people like me knows better, because it is what I would like to say here, quote that जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है. You already know this one, you are a poet, and you must be knowing that God has never created anything without use. And in the poetic word you can say, मिल जाए अगर गम तो भी अपनाए खुशी से, दुनिया में कोई चीज भी बेकार नहीं है. और आप तो माशाल्लाह, you are occupying such a important post. Administrative service is one of the best services in the state, and you are a part of that. So don't think that I don't think that you are nothing and I have wrongly chosen. I have chosen to with a great purpose. You are going to inspire so many people you don't know. So because one of the hottest cake from the job perspective is WBCS, and you have gone through this one. Your journey to achieve this is surely going to help many people. So inshallah, so without any delay, I will be just starting. I would like to tell some of my audiences that you keep your microphone muted unless you are asked for, because it will create some problem, and you will be given chance to ask question in the last 15 minutes. Till then, you can keep a record of your question, and then you will ask. You will be given full chance to discuss with him, and you must ask question as well. So without any delay, I would like to start my conversation with अंजुम रोमान साहब, सैयद अंजुम रोमान साहब. सर, सबसे पहला सवाल जो मैं हर इस प्लेटफॉर्म से कहता हूं कि आपकी इब्तदाई तालीम, यानी आप you tell me your family background. Please, I think there is... tell our audience about your family background, please. Sir, as far as I am concerned, I belong to a very middle class family. Not only middle class family, a family which was standing at the very on a line which demarcates poverty. It may be categorized as a poverty line. My family was standing there. There was a struggle in early life, and my father was a very used to work in a very private firm, and we were very actually what I want to say is that from since my childhood I had a life which was very struggling. I used to I must say that I first of all I read in primary school municipal, which used to be run as Kolkata Municipal Corporation, and then I was admitted to from class 5 onwards in higher secondary school called Matia Bruj High School. My before that, I must add that as you are asking about my initial stages of my life, I was born in Gaya district in the state of Bihar, and Gaya is famous for Gautam Buddha. Yes, correct. He attended Nirvana there. It's a historical place. And then I was very in early childhood days. I was brought to Calcutta, and because my father was
there in Calcutta in Matia Bruj, Garden, a part of Gardenish. And as I said, I was admitted to primary school, and then I read in Matia Bruj High School. Then I passed from that school in the year 1984 and matriculated from there. And then I did my Roman secondary studies. रोमान साहब, ये आपने माध्यमिक एग्जाम पास किया होगा मेरे ख्याल में पहले, जी माध्यमिक जी एग्जाम। जी जी तो माध्यमिक हाँ। एग्जाम माशाल्लाह, मतलब आप ब्रिलियंट रहे होंगे। फिर उसके बाद जब आप +2 में जब गए तो आपने कौन सा जी स्ट्रीम चुना +2 में? जी, मैंने साइंस चुना था, साइंस चुना था। और ये मैट्रिकुलेशन में मेरा एक्चुअली बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने पास किया था। और कलकत्ता में एवं उर्दू स्कूल्स हमने जो है टॉप किया था। उस वक्त वो एक शेरवानी अवार्ड दिया जाता था। सर अभी आप कह रहे थे कि मुझे... मैं कुछ कर, ये टॉप करना ये अचीवमेंट नहीं है सर, ये आपके अचीवमेंट है। नहीं, उसके बाद की जिंदगी मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। तो उसके बाद फिर हायर सेकेंडरी मैंने जो है साइंस में एडमिशन, उसी स्कूल में मटिया बुज हाई स्कूल में मैंने साइंस में एडमिशन लिया। और वहाँ जो है जो कहते हैं कि जिंदगी जो है एक बार मिलती है, क्योंकि हम लोग तो वो बीइंग अ मुस्लिम वो दूसरी या तीसरी जिंदगी पे जो है बिलीव नहीं करते और यकीन नहीं रखते। तो एक ही जिंदगी मिलती है, और अगर आप किसी तरह की भी कोई गलती कर जाते हैं तो फिर देयर इज नो अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म, रिटर्न बैक, रिफॉर्म और मॉडिफाई द वेरी पाथ ऑफ लाइफ। तो वो हमारी एक गलती थी, और गलती इसलिए थी कि वो सिर्फ हमारा वो फैसला नहीं था, बल्कि हमारे जो आसपास के लोग थे, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स मतलब फादर जो है, वो बजीद थे कि भाई आप साइंस में लें, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, इसलिए साइंस एक होता भी है, जो भी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पहली पसंद होती है साइंस। लेकिन मेरे साथ तो वो जो फैसला जो है बड़ा गलत हुआ। मैं चाहता था कि मैं आर्ट्स में ही कई स्टूडेंट रहूं, क्योंकि मेरी जो लिखने पढ़ने की जो सलाहियतें वो आर्ट्स के लिए ज्यादा मौजूद थी। बहरहाल तो साइंस हमने किया। तो उसके बाद एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त जो है जो डिसीजन लिया गया वो आपने खुद नहीं लिया गया, बल्कि एक उस्ताद वगैरह है, उन लोगों ने आपको मशवरा दिया होगा, आपके वालिदैन ने मशवरा दिया होगा, तो गया आप एक जो है दबाव में आके आपने वो फैसला किया, साइंस लिया, जहाँ पहुंचकर आपको एहसास हुआ कि आप जो है सही ट्रेन पर नहीं उठे हैं, यानी आपने सही ट्रेन नहीं पकड़ा। तो उसमें जो दुश्वारी कब हुई, कब आपने ज्यादा महसूस किया? जब पढ़ाई शुरू हो गई हायर सेकेंडरी की, तो आपको कौन से मज़ामीन आपको मतलब पसंद नहीं आ रहे थे? मतलब जरा सा इसको भी जरा वजाहत करें तो। जी, मैं आ रहा हूँ। तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि चूंकि मैं अपनी तबीयत के खिलाफ गया था, और मेरे कुछ टीचर्स ऐसे थे, कम से कम 2 टीचर्स जो अब इंतकाल कर चुके, अल्लाह उन्हें उनकी माफ़रत करे। तो एक ने ही तो कहा था कि अंजुम रुमान, तुम तो जो सोचते हो माने वो आर्टिस्टिक सोच है तुम्हारी तहरीर जो है वो आर्टिस्टिक है, तुम क्या कहते हैं फिक्शन राइटर। उस वक्त मैं लिखा भी करता था, और इतनी अच्छी तुम्हारी जबान है, और तो तुम्हें तो तुम्हारे बारे में एक पेशगोई है कि तुम जो है वो आर्ट्स के स्टूडेंट तो तुमको होना चाहिए। अच्छा। तो जैसा कि मैंने कहा कि अब चूंकि वो उस वक्त ऐसा दौर था, आज भी है, कि लोगों की राय बनती है कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो फिर वो साइंस में जाएं। तो उसकी वजह से मैं साइंस में गया, लेकिन बहुत कामयाब नहीं हुआ। और जो इतने अच्छे मार्क्स उस जमाने में मैंने 80% मार्क्स के करीब लाया था। 80% मार्क्स थे हमारे मैट्रिक में, वो जाके हायर सेकेंडरी में 55% के करीब हो गए। तो जिसके चूंकि मेरा वो दिल भी नहीं लग रहा था। इसको इस तरह से आप समझें कि अगर शेक्सपियर को साइंस पढ़ाया जाता या आइंस्टाइन को आर्ट्स पढ़ाया जाता, तो वो शेक्सपियर या फिर आइंस्टाइन नहीं होते। ये मेरा मानना है, बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है। तो एक सेकंड सर, आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा तकलीफ दे रहा था, पसंद नहीं आ रहा था? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा परेशान करता? मैं अगर कहूंगा तो आपके लिए हंसी की बात होगी। नहीं, आप बोले, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ।
वो मैथमेटिक्स जो है मेरे लिए दर्द सर था। जी 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 हालांकि मैथमेटिक्स के बारे में लोग कहते हैं कि अगर समझ में आ जाए तो उससे आसान सब्जेक्ट नहीं, और समझ जी, में ना आए तो उससे खराब सब्जेक्ट नहीं। तो बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल। तो जाहिर ये मामला रहा होगा कि हाँ वो कभी भी वो, चूंकि मैट्रिक में भी मैंने जो इतना अच्छे मार्क्स लाए, हाँ तो इसमें क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स मेरे नहीं थे, बस इसकी परसेंट के करीब थे। हम्म, तो बहरहाल वो भी मैंने जो साइंस लिया तो वो प्योर साइंस लिया जिसमें मैथमेटिक्स था। हाँ जी जी समझ रहे हैं ना? तो ये जी जी बिल्कुल वो रॉन्ग डिसीजन था, इट वाज क्वाइट अ रॉन्ग डिसीजन, एंड आई रिग्रेटेड इट लेटर ऑन। उसके जी बाद भी एक मौका हमारे पास था कि मुझे, जब हमने हायर सेकेंडरी किया तो हम चाह रहे थे कि आई शुड चेंज द स्ट्रीम, बट आई कुडंट, हम्म, बिकॉज एट दैट टाइम आल्सो वही सेम प्रॉब्लम वाज विथ मी, एंड देयर वाज अ पीयर प्रेशर कि नहीं, अगर ठीक है ये हो गया आप साइंस में वो करें। तो मैंने वहाँ कलकत्ता में एक साइंस कॉलेज में मैंने वो जो है क्या कहते हैं कि एडमिशन भी लिया। लेकिन उसके बाद फिर ऐसे हालात मेरे पैदा हो गए कि मेरे फादर को पैरालिसिस के शिकार हो गए। उसके बाद घर के हालात मैंने जैसे बताया कि बहुत अच्छे नहीं थे। हम्म, ट्यूशन पर ही जो है हमारी फैमिली चलती थी, जी जी तो माशी हालत बहुत ही ख़राब थी। तो माशाल्लाह। ऐसे बैकग्राउंड में मैंने साइंस लिया ज़रूर। मुझे याद आता है कि मैंने दो, उसके बाद फिर तीसरे एग्ज़ाम में तीसरा किसी सब्जेक्ट का गालिबन केमिस्ट्री या फिजिक्स का वो था, एग्ज़ाम था। तो मैंने जो है वो वहाँ से एग्ज़ाम छोड़कर चला आया, मैंने इतना डिप्रेशन का शिकार हो गया था। जी जी तो बैर क्या, उसके बाद फिर 2 साल तो चूंकि ऐसे हालात पैदा हो गए कि मैं ट्यूशन पे पूरी ज़िंदगी जो है हमारा पूरी फैमिली जो है वो बसर कर रही थी। तो जी हम लोग जी सब ट्यूशन किया करते थे, इंक्लूडिंग माय मदर। वो हाँ बहुत माशा ज़्यादा मतलब जो पढ़ी लिखी खातून इन मामले में नहीं थी कि वो, लेकिन वो जो है बच्चों को कुरान और इसकी तालीम दिया करती थी। जी तो माशा ऐसे हालात, तो जी 2 साल के बाद फिर हमने जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से वो इसमें जो है आर्ट्स में जो है जो गलती मैंने की थी उसको, हम्म उसकी भरपाई करने की कोशिश की। हम्म और फिर जो है तो जब इसमें जो है हमने ग्रेजुएशन किया आर्ट्स में, और फिर मैंने जो है फर्स्ट क्लास लाया, उसमें अंग्रेजी भी सब्जेक्ट में हमने रखा था। हम्म, और ये करने के बाद ही जो है 1994 में मैंने जो है वो WBCS दिया। तो उस वक्त मुझे एक एक्सटेंशन ऑफिसर की सर्विस, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की सर्विस मुझे मिली थी। तो 94 टू 98 मैं रायगंज में पोस्टेड रहा, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर था। उसके बाद फिर 96 में सर मैंने जो यहाँ है पर एक एग्जाम जी एक सवाल यहाँ पर, ये आपने जी जी आपने बिल्कुल बीए किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, तो जी आपको जी WBCS के बारे में मैंने हम्म। पहले से जानकारी थी, या पहले से ही आप इरादा कर चुके थे, या किसी ने आपको रास्ता दिखाया, किसी ने आपकी मदद की? ये वाकया भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी जी भी जी थोड़ी सी तफसील बयान करें। जी जी नहीं, ये तो कुछ मेरे मेरे जो सीनियर्स थे उसमें जी एक नाम है जो अभी इसमें है एक्साइज डिपार्टमेंट में जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के रैंक पे हैं। क्या तो नाम है? उनका नाम अशफाक अहमद, जी जी अशफाक जी अहमद। जी तो उसके बाद मेरे एक और सीनियर थे इकबाल, मोहम्मद इकबाल, वो भी WBCS में आ चुके थे। तो हम्म, उन लोगों से मैंने मशवरा लिया, क्योंकि उस वक्त ये मटिया बुरुज में ये 2 ऑफिसर, ये गालिबन पहले 2 ऑफिसर थे जो WBCS जिन्होंने क्रैक किया था। तो हम्म, तो मैं उन लोगों से मशवरा किया, तो उन लोगों ने कहा तो उन लोगों ने राह दिखाई थी, हम्म, क्योंकि वो कामयाब उस जमाने में, मेरे जमाने में वो कामयाब इंसान थे, हम्म, लोग थे। तो जिसकी वजह से उनसे हमें ये पता चला, तो फिर वो सारी चीज़ें मैंने जो है वो लाई। उसके बाद UGC का से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ करता था, जी जी जो माइनॉरिटीज और इनके लिए, जो SC STs के लिए अच्छा अच्छा वो कोचिंग UGC का जी चलता था मौलाना आजाद कॉलेज में। जी तो जी मैंने वो कंपटीशन भी दिया, और उसमें मैंने जो है समझिए कि दाखला भी हमारा हुआ। तो कोचिंग भी मैं करता था और इस तरह से 96 में मैंने फिर से वो WBC, 94 में तो एक सर्विस मिली थी, 96 में मैंने जो है ये जो अभी मौजूदा सर्विस, हाँ, ये जो सोशल वेलफेयर, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर में हाँ। वो मैंने वो कामयाब हुआ, और इस तरह से ये सर्विस मुझे अच्छा, मिली। तो और जी
एक उसमें जो है मैं WBCS में जो मज़ामीन आपने क्या-क्या सिलेक्ट किए थे? उसमें थे एक मैथमेटिक्स का भी सब्जेक्ट होता है, तो उसने कितना तंग किया जी, जी। आपको? हाँ, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट वो मैंने जो मेरी उम्मीद थी, मैं तो ग्रुप ए में वो इंटरव्यू मुझे मिला था हाँ, और तो वो और उसके जो एग्जीक्यूटिव या जो जो मेरी पसंद की सर्विस नहीं मिलने के पीछे भी वही मैथमेटिक्स जो है एक मेरे लिए दर्द-ए-सर रहा। मैथमेटिक्स के साथ मैं ये कहूँगा कि एक जस्ट माने काइंड ऑफ क्या कह लें, एक तो मेंटल ब्लॉक फॉर्म कर गया हाँ, था हाँ। कि अब वो तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हुआ करती थी। जी, जी। कमाल की बात ये कि जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो जब मैथमेटिक्स भी जो बच्चों को पढ़ाया करता था, जी। उसमें तो क्वेश्चन आंसर मुझे याद हो गए थे। हुँ। लेकिन फिर जब वही एग्ज़ाम में वही हाँ, मैथमेटिक्स जब आता था तो फिर वो वहाँ जो है वो मैं अच्छा नहीं कर पाता था। तो मेरे ख़्याल में इट हैज़ समथिंग टू डू विथ माय काइंड ऑफ माने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज़ देयर जी, जी, जी। आई थिंक कि अगर आप मेरा ख़्याल है कि आप जैसे अगर टीचर मुझे नसीब हो जाते, तो शायद ये इस चीज़ का नहीं, मैं नहीं, जो नहीं। ज़िंदगी जो है, तो ये मामला है। तो मैंने एनालिसिस किया तो उसमें भी जो है वो एक प्रॉब्लम रहा, वो एक बाधा जिसको कह लें वो रहा जिसकी वजह से शायद और अच्छी सर्विस मुझे मिलती। आज मैं कहीं और भी और अच्छा कर सकता था। आप जो है या WBCS के लिए है सर, कितने घंटे तैयारी किया करते थे? आप मतलब जो है कितना वक़्त लगा? यानी BA पास करने के बाद फ़ौरन आपको जी, जी। नौकरी लग गई या फिर आपको इंतज़ार करना पड़ा? ये बात भी इम्पोर्टेंट है हमारे सामने के लिए ज़रा बताएँ कि आप कितना हाँ, घंटा तो पढ़ते थे? कैसे तैयारी करते थे? मतलब ज़माने में तो ऐसा था कि लोग जो है ये टेप रिकॉर्डर लेकर के अपनी रिकॉर्ड रिकॉर्ड करते थे और फिर उसको सोने से सुनते थे। बहुत सारे तरीके लोग जी, अपनाते जी, थे जी। मेहनत करने के जी, जी, जी। और ताकि वो जी, जी, खास जी। करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत टफ लगता था लोगों को याद करना, ये सारी चीज़ें थी। तो जी, जी। आप इन सब से कैसे जूझे और कैसे कामयाबी ज़रा हमारे सामीन के लिए एक इम्पोर्टेंट बात इसको बताएँ? हुँ। जी, जो उसमें उस ज़माने में डब्ल्यूबीसीएस में तो जो कंपल्सरी जो पेपर्स होते थे उसमें जैसा जैसा कि आपने बताया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अभी का जी। मुझे मालूम भी नहीं अभी भी क्या वो तो होगा तो ज़रूरी। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मज़े की बात कि मुझे बहुत अच्छा लगता था और हाँ, माशाअल्लाह। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कभी भी माने इट वाज़न्ट अ हेडेक फॉर मी। हुँ, इट हैज़ नेवर बीन हेडेक फॉर मी क्योंकि गुड। वो बहुत ही प्यारा, बहुत दिलचस्प सब्जेक्ट लगता था मुझे। हुँ, हुँ। क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं हाँ जी। तो इसलिए और कॉन्स्टिट्यूशन की हमेशा बात होती है। हाँ जी, इन अ जी। डेमोक्रेटिक perspective you must know about your constitution। तो इस तरह से वो कभी हमें ऐसा लगा ही नहीं कि एक सब्जेक्ट है या ठूस दिया गया है या ज़बरदस्ती जो है मुझ पर लाद दिया गया है। जी, 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 तो जी। बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट रहा, वो प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद वो 5 ईयर प्लानिंग उसमें चूँकि वो डेटा वगैरह का बहुत फिगर्स और हाँ जी, जी। स्टैट्स का बहुत मामला रहता था, तो वो तो ज़ाहिर है कि वो याद रखने की चीज़ थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा यूँ कह लें कि 50 मार्क्स का वो हुआ करता था, जी, 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 तो जी। उसमें ठीक है, ये है कि उसको बाद में एक प्लानिंग के तहत जो है 5 ईयर प्लानिंग को प्लानिंग के तहत हम पढ़ते थे और उसमें भी मार्क्स मेरे ख़्याल में। उसके बाद करंट अफ़ेयर्स का मामला था, तो चूँकि अखबार पढ़ने का जो है हुँ, मुझे बहुत हमेशा से मेरी आदत रही और अंग्रेज़ी जो मेरी जो भी मैंने हमने जो सीखी, वो उसमें अखबार का इंग्लिश अखबार का बहुत हाथ रहा। इसकी वजह से जो अंग्रेज़ी अखबार चूँकि पढ़ता था क्योंकि लैंग्वेज का अबूर हासिल करने के लिए कि हुँ। क्योंकि आप जानते हैं कि आई हैव माने वी वेयर द माने उर्दू मीडियम प्रोडक्ट जी, उसमें जी। ये होता है कि अंग्रेज़ी आपको अच्छी करनी पड़ती है जब व्हेन जी, यू जी। हिट फॉर और व्हेन यू एस्पायर फॉर you know an examination like WBCS जी। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में तो आपको तो अंग्रेजी जाननी ही होगी हुँ, तो इस वजह से तो करंट अफेयर्स में उसमें कवर हो जाता था जी। मैगजीन खरीदा करता था तो इस तरह से मैगजीन के जरिए अखबार के जरिए हुँ, मैं WBCS का कम से कम करंट अफेयर्स की तैयारी बड़ी अच्छी हो जाया करती थी हुँ, और इसके अलावा इंग्लिश जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कभी भी हेडेक नहीं रहा हुँ, क्योंकि इतना मैं जानता था कि अंग्रेज़ी मेरी कम से कम WBCS के लिए मैं 100% अटेम्प्ट करूँगा और जी। किया भी और उस तरह से और चूँकि वो मैंने बताया कि यूजीसी की कोचिंग कर रहा था तो वहाँ एक अंग्रेज़ी के बड़े अच्छे हुँ, बंगाली टीचर मिल गए थे हमें हुँ, तो वो भी जो है तो उसमें जो भी थोड़ी बहुत अगर खामियां थी तो हुँ, उनके ज़रिए जो है वो
मुझे बहुत मैंने उनसे फायदा हासिल हुआ, और एक अच्छी एक अंग्रेजी जो है मैंने वहाँ सीखी, उस सब्जेक्ट में आई ग्रू स्ट्रॉन्गर। जी जी। तो इस तरह से, और ऑप्शनल पेपर्स में मैंने जो है लिंग्विस्टिक रखा था, लिंग्विस्टिक और पर्शियन, वो बहुत ही, चूंकि माने ऑप्शनल आप इस तरह से रखते हैं कि भाई उसमें कितना स्कोरिंग है वो सब्जेक्ट, वो जी भी जी। एक प्लानिंग के तहत होती है। इतना नहीं कि आप आपका सब्जेक्ट क्या है या आप कितना जानते हैं, उसमें जी यह है कि आप कितना मार्क्स आप ला सकते हैं। जी तो जी। वो सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं। और उसके बाद चूंकि उर्दू मेरी मादरी जबान रही है, मदर टंग रही है, तो उर्दू, और इट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो अंग्रेज दो दो पेपर्स तो उर्दू की भी थे। तो तो सर यहाँ इस पर तरह से मैंने एक बात यहाँ पर ठीक। इम्पोर्टेंट, जब आप इंटरव्यू देने गए तो जी। आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने चुना, तो उस हम्म। हवाले से कोई सवाल आपसे पूछा गया कि भाई आपने फिर ये पर्शियन क्यों लिया है, आप दूसरा हिस्ट्री क्यों नहीं रखा, इस तरह के कोई सवाल जो है हाँ बोर्ड में आपसे हाँ। पूछा गया? जी हाँ, ये तो पूछा गया, और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जब WBCS के लिए, जब ये इंटरव्यू के लिए मैं तैयारी कर रहा था, तो दो चीज़ें हमें जो है सीनियर्स ने बताई थी। वो अच्छा। ये कि आप जो भी, आप पहला पार्ट तो ये होगा कि आपकी पर्सनल लाइफ के जी। बारे में पूछा जाएगा, Tell और about शुरुआत yourself. होगी। जी हाँ, तो वो आपके बारे में, आप कहाँ रहते हो, आपके नाम से लेकर आप कहाँ रहते हो, और उस सिलसिले में सारी जानकारी आपकी होनी चाहिए। जी जी। एंड ये आप, और मैं तैयार भी था, इसलिए कि जब जब पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम्म, तो वहाँ उसमें ये बात आएगी कि आप कहाँ रहते हैं भाई, तो मटिया बुरुज में। मटिया बुरुज की अपनी एक तारीखी हैसियत है। जी जी। तो इसलिए मैंने जो है वो सारी जो है मटिया बुरुज के बारे में सारी वाकफियत हासिल कर ली थी। अपने नाम के बारे में वाकफियत तो हमें तो थी ही, और उसके बाद ये सब्जेक्ट्स के बारे में, तो ये मैं जानता था कि ये सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे कि आपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट था, और इसमें ये लिंग्विस्टिक आपने क्यों रखा। तो उसके लिए मैंने बिल्कुल मैंने ये किया था कि भाई ट्रूथ मस्ट प्रिवेल, जो सच्चाई है। तो मैंने जी जी। साफ वो पूछा भी गया था, तो मैंने कहा कि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसमें हमने देखा कि थोड़ी मेहनत कर ली जाए तो हमें जो है ये बहुत ज्यादा कुछ दे सकता है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। तो ये यही यही वजह थी, और मेरा ख्याल है, उस वक्त तो मार्क्स तो मुझे पता नहीं था, कि मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत अच्छा किया, और इसमें अच्छे मेरे मार्क्स भी आए होंगे। तो उसमें जो चेयरमैन कृष्णा मूर्ति साहब हुआ करते थे, जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी एक ज़माने में थे, तो उन्होंने, जब मैंने कहा कि इसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आएँगे, तो मुझे याद है कि उन्होंने जो उनके सामने जो मेरा जो वो ये रखा हुआ था, बायोडाटा रखा हुआ था, तो उन्होंने उस तरफ देखा। तो ज़ाहिर उनको यकीन हो गया होगा कि ये जो बात कह रहे हैं, इनकी बात में सदाकत है, सच्चाई है, ट्रुथ है, और इस तरह से ये चीज़ हुई। और मेरा जी, ख्याल है कि तमाम जो है उर्दू नोइंग बच्चों से एक सवाल और जी। पूछा जाता है कि हाउ मच हुँ, हुँ। बंगाली यू नो, डू यू नो हाउ टू हुँ, राइट, हुँ। हाँ, हाँ। how to speak Bengali, or they ask you to write something. Uh, हुँ, हुँ, was हुँ, that हुँ, हुँ, question हुँ। asked to you as well? Yes, it did. जी। Actually, the first question, the very chairman of हम्म, that committee asked me. हम्म, The first question was, Mr. Anjum Roman, what is your mother tongue? I said, Urdu, sir. उन्होंने कहा कि भाई, so in which language should we take interview from you? So I said that I am comfortable with in English. Yeah, I comfortable in English. You may ask me in Bengali also, and you may ask me my in Urdu language. yes, तो correct. लोग बहुत पंद्रह था, ठीक है। तो कहा कि ठीक है, वी विल बी आस्क यू इन बंगाली एंड इंग्लिश। तो इस तरह से उन्होंने मिला जुला जो है वो, तो ये था। तो उसके बाद जो उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई कितना आप बंगाली, क्योंकि उन्होंने साफ वो देख कर ही हमसे जो है, माने ऑप्शन उन्होंने दे दिया मुझे कि आप इंटरव्यू लें तो किस में, बंगाली में लें या इंग्लिश में लें, या कौन से लैंग्वेज में। तो इस तरह से उन्होंने जो है इंग्लिश और बंगाली दोनों में पूछा। और चूंकि बंगाली, जाहिर बात है कि जब बंगाल में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए जब से आप एस्पायर करते हैं, और ये एग्जाम देना चाहते हैं, या ये करते हैं कि सर्विस में जाना चाहते हैं, तो जाहिर है कि यू शुड नो बंगाली। तो चूंकि मैं तो बहुत बचपन से बंगाल में रहा था, तो बंगाली भी मेरी अच्छी थी, कम से कम इतना तो था, इतनी अच्छी थी कि मैं कम से कम बोल सकता था, समझ सकता था। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे जो उसमें जो मेंबर्स थे, कमिटी के मेंबर्स थे, बोर्ड के मेंबर्स थे, उन्होंने बंगाली में भी क्वेश्चंस किए।
मैंने बहुत फ्लुएंटली बंगाली में जवाब दिया। व्हेन दे आस्क मी एनी क्वेश्चन इन इंग्लिश देन आई रिवर्टेड बैक इन इंग्लिश। इस तरह से ये मामला था। लेकिन आज के ज़माने में तो शायद अभी जो मैंने सुन रखा है कि वो यू शुड नो बेसिक के बंगाली आज ये है, तो वो लिखवाते भी हैं कि आप लिखना जानते हैं कि नहीं, बोलने की प्रैक्टिस है कि नहीं, बोल पाते हैं कि नहीं। तो उस ज़माने में वैसा नहीं था। तो मैंने कि आपको ये जो वाकया मेरे जी, साथ खुद हुआ है जी, 1986 में। उन्होंने मुझसे पूरा जी, एक पैराग्राफ लिखवाया था, पूरा जी, पैराग्राफ जी, जी। नाज़िल इस्लाम के हुँ, बारे हुँ। में। तो ये अच्छा, अच्छा। मूड के ऊपर है, शायद रहा हो। लेकिन ये सवाल जी, बहुत जी, जी। इम्पोर्टेंट है और मैं तो चाहूँगा कि हुँ, जो लोग भी सामीन सुन रहे हैं, उनको ज़रूर बंगाली मतलब लिखना, पढ़ना आना चाहिए। आप सर्टिफ़िकेट कोर्स लें, बहुत जगह सर्टिफ़िकेट जी, कोर्स अवेलेबल है। हाउ कम दैट जी हाँ। you are going to work in West Bengal, where the largest population is knowing Bengali. They write, even the papers are, they write sometimes the application in Bengali. How you will be able to हुँ, deal with them? So ये हुँ, मैसेज या यहाँ पर जाना चाहिए कि जो भी लोग एस्पायरिंग है और WBCS करना चाहते हैं, तो उनको ये चाहिए कि कम से कम जो बोलना ही काफी नहीं है, बल्कि उनको लिखना भी आना चाहिए। तो सर, जब आप बिल्कुल। आपकी पहली पोस्टिंग, जब ये सवाल तमाम प्रोसेस में कम से कम 1.5 साल तो लग ही जाता है। आपने इंटरव्यू दिया, जी हाँ, जी हाँ। एप्लीकेशन फिल अप किया, फिर आपका जो है हुँ, वो हुँ। एग्ज़ाम हुए, फिर आपका इंटरव्यू हुआ, फिर आपकी पोस्टिंग हुई। ये जो जी, जी। पूरा वक़्फ़ा जो है कम से कम 1.5 साल, 1.5 साल 2 साल के करीब हो जाता है। तो पहली जी पोस्टिंग हाँ। आपकी कहाँ हुई और किस हाँ, पोस्ट मेरी पो आसाम को बताइए? हाँ, ये चूँकि सर्विस मुझे एज़ फार एज़ डब्ल्यूबीसीएस कंसर्न्ड, हमने 94 में वो जैसा कि बताया कि पहली सर्विस मुझे मिली थी एक्सटेंशन ऑफिसर की, दैट वाज़ इन द ईयर 1994। जी, So जी। I appeared in the examination 1993. That by 1990 I was a candidate of 1993 batch as far as WBCS batch is concerned, जी, जी, and जी। I was called for the interview in the 1994, and I was appointed as cooperative inspector in the last I think in the in the month of November 1994 I was appointed as I mean cooperative inspector। तो हुँ, मेरी पहली सर्विस थी और उसमें जो है वो 94 टू 98 हमने जो है उसी सर्विस में हम रहे, एंड आई वाज पोस्टेड एट रायगंज। जी, इट जी, इज रायगंज। इन द बहुत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर बहुत मशहूर जगह है, दिनाजपुर इन बहुत नॉर्थ मशहूर बंगाल। जगह है, जी 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 बॉर्डर के जी। करीब। तो जी। वहाँ जी जी, तो वहाँ मैं 4 साल पोस्टेड था। उसी ड्यूरिंग माय फर्स्ट सर्विस आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन फॉर a better service, हुँ, and I appeared in that examination for the second time in 1996, and जी, I got the interview in the 1996, and then I got the appointment in 1998। यानी यस, 96 से 98 आप जैसा बता रहे हैं कि 1.5 जी, साल, मुझे 2 साल लग गए थे जी, एग्जाम देने के बाद। हुँ, तो उसके बाद मैं जो है डिफरेंट ब्लॉक्स में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में मैं ब्लॉक लेवल ऑफिसर हुआ करता था, सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो वो ये सिलसिला चलता रहा समझिए 98 से ये 2017 तक। उसके बाद आई वाज प्रोमोटेड टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, और उस मैंने दार्जिलिंग में फिर मेरी डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग हुई एज डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर। वहाँ 2 साल मैं रहा, और सिंस जनवरी 19 मैं एज आई एम पोस्टेड in my current place of posting, that is Purulia, हुँ। as district program officer Purulia, sir। तो ये आपका जो ट्रेनिंग जो हुआ होगा, फर्स्ट 6 मंथ जो आपको ट्रेनिंग मिली होगी, वो हम्म। कितने वक़्फ़े का ट्रेनिंग था और कहाँ आपने वो ट्रेनिंग लिया था, जो आपने दोबारा जॉइन किया तो? हुँ, दोबारा देखिए, ट्रेनिंग तो मैं तो दोबारा जो ज्वाइनिंग मैंने की तो उसमें तो ज्वाइनिंग एकदम डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो गई, कोई अच्छा, ट्रेनिंग नहीं थी। और कम से कम मेरे ख्याल में मैं 4 साल उसी ब्लॉक में सर्विस करने के बाद सीडीपीओ, तब हुँ, मेरी ट्रेनिंग हुई, और ट्रेनिंग बहुत लेट ट्रेनिंग हुई। तो हुँ, उस वक्त मैंने ट्रेनिंग में सीखने के लिए मेरे लिए कुछ नहीं था, क्योंकि जी, 4 साल हम जो हाँ, मैं फील्ड ऑफिसर रहा, तो मैं सब कुछ सीख गया था। तो बहरहाल उसमें ये कह लें कि एक तरह से काइंड ऑफ रिफ्रेशमेंट वाज देयर, हुँ, इट वाज अ रिफ्रेशिंग कोर्स। जी, जी, और ये 6 महीने के लिए नहीं, बल्कि 1 महीने के लिए ये 1 सर्विस। मिनट। लेकिन मेरी जो पहली सर्विस थी उसमें 6 महीने हाँ, जी, 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 जी।
मेरी जो है ट्रेनिंग हुई थी। तो वो तो एक अच्छा पीरियड था, कम से कम सर्विस में भी जो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो हॉस्टल वाली लाइफ है, वो जी जो जी है। तो कल्याणी में वो 6 महीने की ट्रेनिंग थी, उसमें फिर वो जो है 1 महीने का वो एक्सकर्शन था, जो कि हम लोग साउथ इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस में हम लोगों ने फील्ड वर्क किया। वो बैंगलोर से लेकर मैसूर और ऊटी तक का हम लोगों ने जी जो जी। है का सफ़र किया। तो दैट वाज़ वेरी गुड पार्ट ऑफ सर्विस लाइफ, हम आई लोग के स्टिल जमाने रिमेंबर। में हम लोग की जो हुई थी ट्रेनिंग कूच बिहार में, और हुँ। 6 महीने का 3 महीना वहाँ कैंप हुआ। अरे बहुत जी, जी, जबरदस्त जी। वो 6 महीना गुजरे थे। जी और हाँ जी, कैंप बहुत फायर बहुत वगैरह जो हम लोगों ने किया था, बहुत जबरदस्त मेमोरीज है वो। तो सर अब एक और, हेलो जी हाँ, अजय, हेलो, देखिए हाँ, हाँ। हाँ, कोई हाँ, स्टाइल हाँ, बीच वाकया कोई ऐसा हो जब आप ऑफिस में आए, आवाम जो है आपसे बिल्कुल जो है एक हॉस्टाइल तरीके से जो है आपसे बात कर रहे हैं, आपको लगा कि हम क्या मतलब मुसीबत में फंस गए, या ऐसे ऐसे मामलात, ऐसे वाकयात होते हैं ये खास करके उन सब इलाके में। आप अपना कोई ऐसा वाकया शेयर कीजिए जिसमें आपको परेशानी हुई और फिर उसको आपने कैसे हैंडल किया, क्योंकि हमारे सामईन जो लोग हैं उनको ये जानना, ये सारी बातें बहुत ही उनके लिए अहम है। तो आप इसको जरा सा शेयर करें। जी, जी। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में तो कुछ तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं, बहुत जो आप याद रखने के लायक होते हैं। जी कुछ जी चीज़ें जी ऐसी भी होती हैं जो आप याद नहीं रखना चाहते, या जी। बहुत ही जो है वो हम्म। एक यूँ कह लें कि एक नाइटमेयर, एक काइंड ऑफ जी जी नाइटमेयर जी जी वो जी होती जी है। जी। तो ऐसे कुछ वाक़यात आए तो अब मैं उसको मतलब उस तरह से शेयर करना नहीं चाहूँगा, हाँ क्योंकि जी जो जी लोग जो बच्चे देख रहे होंगे या जी जो जी जी वो, तो उनके लिए जी। वो अच्छा मैसेज नहीं नहीं जाएगा। नहीं, बस लेकिन बस ठीक है, इतना समझ हाँ, गए बच्चे। जी, जी। बच्चे समझ जी, गए। जी। आ, तो अब जो और है उसलिए आप, इसलिए जी जी। जी सर बोलिए। हाँ, तो वो ये कि और वो जो सामने जो ये मामला जो दरपेश हुआ सामने आया, वो इस वजह से, महज़ इस वजह से कि माने आई वाज़ परफॉर्मिंग माय ड्यूटी वेरी ऑनेस्टली। जी तो जिसकी नाकर्दा गुनाहों की सज़ा जिसको बोलते हैं, हम्म, तो उस तरह की। तो बहरहाल फिर भी जी वो, जी जी चूँकि हमने जो है उसको, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उस तरह हम्म, से वो उसपे अब हम्म, ये किया। लेकिन ये सबके साथ ऐसा हो कोई ज़रूरी नहीं। ये वाक़या नहीं मेरे नहीं रायगंज नहीं में पेश आया था। नहीं। तो तो जी, जी। आपने और शादी नौकरी करने से पहले की, डब्ल्यू से ज्वाइन करने से, या शादी आपने नौकरी करने के बाद की, और आप फैमिली को ये लेकर के जब जो है उनसे रायगंज इलाका में रहे, मिर्जा बुरुज से, जी। तो फिर हुँ, हुँ। आपको फिर वो बच्चों के स्कूलिंग के मसले, आपको उसके उस इन सबको कैसे हैंडल किया आपने? देखिए असल क्या है कि ये आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आते हैं तो ये तो है कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात आपकी बढ़ जाती हैं, जी जी और फैमिली लाइफ़ तो सफ़र करती है, इसमें कोई जी दो राय नहीं है। जी जी। और इसलिए भी सफ़र करती है कि अगर आप एक जगह स्टेशन्ड हैं, इफ यू आर हम्म स्टेशन्ड एट पर्टिकुलर प्लेस हम्म फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन हम्म इट इज़ ओके। हम्म योर फैमिली लाइफ़ विल बी हम्म एस्टैब्लिश्ड हम्म, देयर। लेकिन जब ट्रांसफ़र वाला मामला होता है, ट्रांसफ़रेबल जॉब होता है, एक जगह से दूसरी जगह हर 2, 3, 4 साल पे आपको जो है, हम्म, यू हैव टू चेंज द प्लेस, यू हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जी जी। तो उसमें क्या है, ताकि आइदर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फैमिली को लेकर चलें, या हम्म, फिर फैमिली को एक जगह स्टेशन करते हैं। तो जब जी जी। बच्चा छोटा होता है तो उस वक़्त तो ख़ैर वो मामला नहीं होता है कि ठीक है हम्म, भाई, आप लेके चलते सकते हैं। लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है हर ऑफिसर के साथ कि जी आपको कहना पड़ता है कि इनफ इज़ इनफ। और जी। अब नहीं हो सकता कि बच्चे को, नहीं तो फिर बच्चे की हुँ, पढ़ाई, आपकी फैमिली जो है सफ़र करेगी। तो मेरी शादी 94 to जो मैं पहली सर्विस में था, हुँ, उसकी ठीक एट द एंड, माने वो आखिरी ज़माना था जब मैंने आई वाज़ अबाउट टू लीव दैट हुँ, जॉब, एंड हुँ, आई वाज़ एक्चुअली आई हैड ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड, आई हैड ऑलरेडी बीन कॉल्ड अपॉन फॉर दिस करंट सर्विस। हुँ, तो उसमें 98 में हमारी जो है शादी हुई, हुँ, और वो ऐसा हुआ कि अब चूँकि हमारी जो है वो शादी का कार्ड तक छप गया था, और जी। इन द मीन टाइम मैंने मेरा अपॉइंटमेंट लेकर आया, और उसमें ये था कि यू हैव टू जॉइन विदिन 15 डेज़। हाँ, तो अब हाँ, 15 डेज़ में अब तो नतीजा ये हुआ कि अब हमको जो है, हमने फिर एप्लीकेशन दिया कि
it is quite next to impossible to join in this new service within 15 days because my marriage has already been Fixed. fixed and I have to इस दिन जो है वो मैरिज है उसमें फिर वो 15 डेज मुझे मिला तो आप यकीन नहीं करेंगे, यू वोंट बिलीव कि हमने जो CL कैजुअल लीव पे हम आए और सर्विस ये जो है शादी की या उसके बाद 2-3 दिन के बाद ही फिर हम रायगंज गए, वहां से फिर वो जो है हमने जो है रिलीज ऑर्डर लिया, फिर नई सर्विस हमने ज्वाइन किया। तो ये इट वाज इन ईयर 1998 21 अक्टूबर 1998 when I was married। तो उसके बाद फिर जो है वो होता रहा, तो हमने जो है फिर वो तो नॉर्थ बंगाल में, उसके बाद फिर साउथ बंगाल ही में हमें माने आई वाज लकी एनफ टू गेट द पोस्टिंग इन साउथ बंगाल। इस तरह से हमने जो फैमिली जो है मेरी स्टेशन रही वही कलकत्ता ही में, और उस तरह से फिर हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन वही जब when I was promoted to district level officer, when I my first posting as district level officer was at Darjeeling। ये जी हेलो इवन सैटरडे मॉर्निंग गया, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, फिर मंडे में ज्वाइन करता था। तो वो 2 साल ऐसे थे कि मुझे बिल्कुल माने अब कभी बड़ा हो चुका था, इसलिए ये वाली तक फिर उसको जो है हम वहाँ ले जाएं या फिर, तो इस तरह से ये मामला था। दूसरी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी जो मिसेज हैं डॉक्टर जीनत जहां, वो साइंस की टीचर हैं, तो उन्होंने जो है वो जो कि आप लोगों के इसके हैं क्या कहते हैं स्ट्रीम की हैं, तो उनको उनकी सर्विस मिल चुकी थी वो रानीगंज फिर आसनसोल में, तो जिस वजह से मैं जो पैदाइश तो इसमें हुई गया हुई, और फिर मैं पला बढ़ा। और अब सामीन अब मैं आप नहीं अंजुम साहब से उनके दूसरे पहलू जिंदगी का जो दूसरा हिस्सा जो है, जिसमें वो एक बहुत ही कामयाब शख्सियत के नाम से जाने जाते हैं पूरे आसनसोल में ही नहीं बल्कि पूरे मगरबी बंगाल में, और बल्कि यूं कहे कि पूरी अदबी दुनिया में इनका अपना इंफरादी मकाम है। वो शेर व शायरी भी करते हैं, कुछ फिक्शन राइटर भी हैं, और नज़्में भी लिखते हैं, मकालात भी लिखते हैं। ये बहुत सारा ये मल्टी फेसेटेड टैलेंटेड पीपल है। आज मैं उनसे थोड़ी बहुत उस हवाले से भी बातचीत करूंगा। तो वो दरअसल मैं इनको जो है अपने 1-2 अशार से मैं इनको कहूँ कि ये सिलसिलाए शेर सुखन भी अजीब है, जिसको अता हुआ वो बड़ा खुश नसीब है। कहते हैं लोग ये कि आसा है शायरी, मेरी समझ से शय ये अजीबो गरीब है। तारीफ इससे बढ़ के भला इसकी क्या होगा, और खुद तो रियाजी ना हूं मगर ये हबीब है। इस फन से मुझको भी है ताल्लुक के खास सा, कहते हैं लोग राजा को कितना अजीब है। तो मैं इन अशार के साथ जो है अंजुम रमानी साहब को कुछ अपनी जो है बेहतरीन गजलों के कुछ हिस्से और अपनी पूरी सलाहियतों के जो एक निचोड़ जो है आप थोड़ा पेश करें हमारे सामने। जो है ये आप उर्दू के शेर शायरी का हवाले से मेरा पहला ही प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि मेरे सारे प्रोग्राम दूसरे तरह के होते थे, तो आज मैं भी मुस्तफीज होऊंगा। तो आप जो है शुरू करें, कोई एक गजलों के कुछ असार जो चुनिंदा सुनाए। चलिए भाई, मुझे बहुत मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन चूंकि मैं माजरत खा हुई हूँ कि आपके जो प्रोग्राम का जो डायमेंशन या जो उसका जो नेचर जो है वो मेरी वजह से चेंज हो रहा है। तो बहरहाल तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो लोग जो है आप चूंकि आप सो कॉल्ड कामयाब लोगों की बातें करते हैं, कामयाब लोगों को बुलाते हैं। सो कॉल्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ नाम नेहात कि मैं नहीं समझता, मुझे अभी भी अजीब सा लग रहा है कि आपने जो है मुझे कामयाब या कामयाबी की कैटेगरी में, कामयाब इंसानों के कैटेगरी में रखा। तो लेकिन जब कामयाबी की जो बात होती है तो नॉट ओनली के जो है वो सिर्फ साइंस की बात हो या ये क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात हो या
कामयाबी ऐसा भी है कि जो एकेडमिशियन भी आपके प्रोग्राम में मेरे ख्याल में आए होंगे, जी जी तो वो कॉलेज के प्रोफेसर भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी की टीचर भी हो सकते हैं। तो जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि मेरी जो ये कह लें कि नेचर कह लें या मिजाज या फितरत कह लें, वो अभी भी मैं ये लोग कहते भी हैं, जो मेरे बहुत अजीज़ और क़रीब जो लोग हैं, जो वेरी पीपल हु आर वेरी क्लोज टू मी, उनका ये ख्याल है, उनकी ये राय है कि अगर आप एकेडमिशियन होते, एकेडमिक्स में जाते तो बहुत कामयाब और ज़्यादा कामयाब होता। और मेरा भी यही ख्याल, क्योंकि मिजाज से जो है वो मेल खाता हुआ, लेकिन कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए कि जिसकी वजह से जो है हमें जो है बहरहाल ऊपर वाले ने, अल्लाह ने जो भी दिया बहुत नवाजा। तो अब चूंकि आपने जो शेर व शायरी की बात की है, तो इस वजह से तो मैं ये बताता चलूं कि इसी साल मेरी एक मजमुआ, गज़लों का मजमुआ बाउनवान भीगी हुई शामें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप तक वो किताब भी इंशाल्लाह मैं पहुंचवाने की कोशिश करूंगा। जी 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 तो जी उसमें तो उसी से एक वो गज़ल जो है 5 अशार की गज़ल मैं पढ़ दे रहा हूँ या सामीन के सामने रख रहा हूँ। जी जी फिर से माजरत चाह रहा हूँ नहीं क्योंकि आपका नहीं प्रोग्राम नहीं जो नहीं है उस तरीके का नहीं है। हाँ, तो लेकिन चूंकि मेरी जब बात होगी या मेरी ज़िंदगी से मुतल्लिक जो बात होगी, तो उसका एक पार्ट है जो ज़िंदगी में, और ये भी ज़रूरी है। मैं इस जी जी मामले में ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे जो है कि इसमें आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, तो आप ये जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो चीज़ जो आपको जो माहौल जो नसीब होता है, वो बहुत ही एंटी रोमांटिक होता है। और शायरी के लिए आपको जो है कुछ हद तक जो रोमांटिक चीज़ें हैं, रोमांटिक का मतलब ये नहीं कि आप इश्क लड़ाएं और मोहब्बत करें, वो रोमांटिसिज्म है। रोमांटिसिज्म में ये है कि जो जिंदगी की जो तल्ख हकायक हैं, जो सच्चाइयां हैं, उनसे जरा सा दूर रहकर जो है आप इमेजिनरी वर्ल्ड में रहकर आप बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो प्रेशर जो आता है, या कभी कभी आप डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं, तो उससे जो है निकलने का वक्त मिलता है और आप खुद को रिचार्ज कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। वो आपकी जिंदगी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए भी जरूरी है। और जाहिर बात है, आप अगर सही रहें, अच्छे रहेंगे, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है वो अच्छे से वक्त दे सकेंगे, सही से वक्त दे सकेंगे, और उसके साथ भी, जॉब के साथ भी इंसाफ कर सकेंगे। क्योंकि एक डिप्रेस्ड इंसान या एक जो भागा हुआ इंसान या जो एस्केपिस्ट होता है, वैसा इंसान अगर एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो अपनी सर्विस के तई जो है जितना उसको जिम्मेदार होना चाहिए, शायद उसकी जिम्मेदारी में कहीं कोताही रह जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपका मशगला हो और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, उसका भी जो है आफ्टर ऑफिस आवर्स आप उसको जो है प्रैक्टिस करते रहें। तो बिल्कुल उससे क्या होता है कि बहुत ये ज़रूरी है ये चीज़, तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में, बिलवास्ता तरीके से ये ज़रूरी हो जाती है। तो देखिए, मैं आपको एक गज़ल जो है, बड़ी मकबूल गज़ल है हमारी, और इसको जब भी मुशायरे होते हैं तो या कहीं भी जो है नशिस्तें होती हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि फरमाइशें भी होती हैं। तो एक गज़ल चंद अशार आप ज़रा सा जो सामीन के सामने जो है मैं रखूँगा। जो गज़ल का जो पहला शेर जो है वो मतला कहलाता है। उसका पहला शेर ये है कि अभी रोशन है एक जुगनू, चलो ना बात करते हैं। अभी रोशन है एक जुगनू, चलो ना बात करते हैं। अभी ताज़ा है एक आंसू, चलो ना बात करते हैं। माशाअल्लाह, जुगनू और आंसू। जी, अभी रोशन है एक जुगनू, चलो ना बात करते हैं। अभी ताज़ा है एक आंसू, चलो ना बात करते हैं। ये दूसरा शेर है कि खलासा दरमिया जो है, अना का खेल है सारा। माशाअल्लाह। खलासा दरमिया जो है, हाँ अना का खेल है सारा, जी, कि होंगे खत्म मैं और तू, चलो ना बात करते हैं। क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त शेर, जबरदस्त शेर जी। खलासा दरमिया जो है, अना का खेल है सारा, कि होंगे खत्म मैं और तू, चलो ना बात करते हैं। जी जी और ये शेर देखें कि अमीर शहर से उसकी रफाकत है बहुत मारूफ। कि आज के हालात के पस मंज़र में देखें कि अमीर शहर से उसकी रफाकत बहुत है मारूफ, बड़े इस संत भी बाजू, चलो ना बात करते हैं। क्या माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये जी शेर जी देखें कि
ये शेर मेरे ख्याल में कि बहुत दिनों तक अगर सुन लें तो ये शेर बहुत ही अच्छा लगेगा जी कि सुना है जहर में उसने जो बोली है जुबां अपनी, सुना है सुना शहर है में बोली जी। जहर में, सुना है जहर में उसने जो बोली है जुबां अपनी, हम्म, हमारे लब पे है उर्दू, चलो ना बात करते हैं। क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त। सर आपने बहुत अच्छी बात कही। आना आना के हवाले से किसी बुजुर्ग शायर का एक शेर है कि आना जी जब तक फना के हाथ पर बैत नहीं करती, जी आना जब तक फना के हाथ पर बैत नहीं करती, नमाज इश्क से दिल की जबी महरूम रहती है। वाह, बहुत तो ये और फिर माशाल्लाह जो आपने है आप साइंस के आदमी होकर भी जो है क्योंकि एक ज़हीन इंसान जो है हर हर अच्छी चीज की तारीफ कर सकता आपने है और पजीराई कर सकता अमीर है। जी शहर का एक जो तस्करा किया तो वो एक शेर है हमारा कि उसे ये हक है कि सैलाब की दुआ मांगे, से तो ये हक है कि सैलाब की दुआ सैलाब मांगे। की दुआ मांगे। अमीर जी शहर है, ऊंचा मकान रखता है। वाह, क्या है क्या है। तो तो माशाल्लाह आपने एक अपनी शेर व शायरी से एक समा को तो कम से कम जला ही दिया है। और मसला हमारे साथ जो है टाइम का है। अगर अब तमाम हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो है इनके इनकी जिंदगी के हवाले से कुछ बातें सवाल करना चाहते हैं तो ये मौका दे करके फिर मैं उनसे बात में आऊंगा कि आप वो मजीद हमें कुछ सुनाएं। तो सामीन में से कोई कोई सवाल करना चाहते हैं? जोहरा बेगम, जोहरा बेगम, आर यू देयर? वसीम साहब, डॉक्टर वसीम, डॉक्टर वसीम, आर यू देयर? जी हाँ, जी हाँ जी आप भाई, ये बात बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। हैं। और मिसाल के तौर पर आपने फरमाया अंजुम साहब ने कि आदमी को अपनी हॉबी वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। वाकई वो वर्क लाइफ बैलेंस और आपका जो इजहार ज़ात है वो भी जरूरी है। हैं। तो यानी अपने आप को दबाना कुचलना नहीं चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं अंजुम साहब। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी। आप इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये उसूल है जिंदगी का, ये हर एक पे अप्लाई होता है ना भाई। जी जी जी। तो जी कोई सवाल हो तुमसे आप पूछे क्या आपने इस हवाले से? ऐसे ही दो एक और उसूल और बताइए जिंदगी के। जी हाँ, ठीक है। जी हाँ। अच्छा नहीं तो तो देखिए, हाँ जी 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 आप कहिए। बताएं बताएं अपने अपने नसरी आपने जो नसर में जो काम किया उसके हवाले से कुछ आप बातें बताएं तो हाँ, लोग जाने आपके मल्टी फेसेटेड कैरेक्टर का कम से कम इजहार हो। ठीक है। जी जी जी। तो नर्सरी जो है ये तो बहुत जल्द जो है एक अफसानों का बड़ा लिखने का जो है एक जुनून सा है मुझ पर। और जब जब मैंने जब अदबी सफ़र का आगाज़ जो है मैंने ये कह ले कि बहैसियत नस्म-निगार ही ने या फिक्शन हाँ, राइटर मैंने जी जी। शुरू किया क्योंकि मेरे वालिद मरहूम अफसाना निगार थे। हम्म, तो बहरहाल वो हालात के शिकार हो गए तो बहुत कम वक्फे में लिखा, लेकिन जो भी चीज़ें लिखी बड़ी अच्छी लिखी। तो जब हालात आपको जब ऐसा माहौल घर में मिलता है तो जाहिर बात है कि आपके अंदर भी जो है वो वलवला, वो जज्बा, वो जुनून जो है वो जागता है, तबीयत में जाग जाती है ये चीज़ें। तो मैंने जो है उस तरह से वो शुरू किया था, तो कहानियाँ लिखा करता था। और फिर बाद में जो है वो अफ़सानों का शौक़ हुआ जी और अफ़साने लिखना शुरू किया। और शायरी के हवाले से ये बता दूं कि शायरी भी जो है इसमें भी जो है एक सर्विस का ही जो है बहुत बड़ा जो है रोल रहा है, उसका किरदार है। जी वो इसलिए कि जब मैं WBCS की तैयारी कर रहा था, सिविल सर्विस की तैयारी में, तो जब वो इम्तहानात के लिए जो है मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए तैयारी में मसरूफ़ था, तो उसमें जो हमारा जो एक पेपर उर्दू हुआ करता था, तो उर्दू में वो एक चीज़ आती थी स्कैनिंग। जो लोग सर्विस के लिए तैयारी कर रहे जी होंगे जी तो जी देखेंगे, इवन IAS में भी है। जी जी तो स्कैनिंग स्कैंशन तो तख्ती कहते हैं, यानी अशार दे दिए जाते हैं उसको, फिर वो जो है वो किस वजन पे है, किस बहर पे है, जी जी। उसको आपको तख्ती करके स्कैन करके जो है वो बताना पड़ता है। तो अब वो मुझे याद है कि 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन हुआ करता था, 2 अशार दिए जाते थे और स्कैंशन जो है चूंकि 2 अशार की आप तहकीक कर लें और 20 मार्क्स आपको मिल जाए तो वो बहुत स्कोरिंग चीज़ होती है। तो
अब उसके हवाले से मैंने जो है वो कुछ किताबें जो हैं मेरी मुझे हाथ लगी इल्मुल उरूज पर, तो मैंने उसका मुतालिया शुरू किया। और जब आप एक चीज़ का मुतालिया करते हैं तो जाहिर बात है, तो अब चूँकि अब वो एक खेल सा, एक मजाक सा बन गया कि जब इसके इकबाल का एक शेर लिया उसकी स्कैनिंग कर रहा हूँ, गालिब का एक शेर लिया, मीर का एक शेर लिया उसका स्कैनिंग कर रहा हूँ, तो करते करते अब जाहिर है कि जब शेर का स्कैन कर रहा हूँ उसकी बहर का पता लगा रहा होता हूँ, तो एक शौक जो है दिल में घर कर जाता है कि भाई, तो जाहिर है कि मैं भी शेर कह सकता हूँ। तो मैंने शेर कहना शुरू किया। तो मेरे एक दोस्त हुआ करते थे मरहूम खालिद कमर, वो मटिया बुर्ज के, जिसको ये पता है कि सानिए लखनऊ था, क्योंकि उसकी तो एक रिवायत रही कि नवाब वाजिद अली शाह जब वो उनकी लखनऊ से जब माजूल किए गए, तो फिर उनको जो है वहीं मटिया बुर्ज में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में कैद रखा गया। उसके बाद फिर वहाँ मटिया बुर्ज वो आए और वहाँ जो है अपने जो मुसाहिबीन उनके साथ 50,000 की तादाद में जो लोग आए, और उन्होंने जो है वहाँ उसी जिलावतनी में वो एक उर्दू का गहवारा बना दिया, जिसको अब्दुल हलीम शरर ने जो है उसको सानिए लखनऊ का, और उनकी बेशुमार किताबें उस पर हैं। तो अब वहाँ जो है ऐसे माहौल में रहकर तो आप शायरी अगर ना सीखे, क्योंकि लखनऊ के बारे में कहा था तो 2 चीजें कही जाती थी कि वहाँ की लड़कियां अगर खूबसूरत ना हो। एक मिनट, यहाँ एक बात ये हो जाए, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जो है मादरी जुबान में जब आदमी बात करता है तो वो डायरेक्ट जो है दिल पर असर करती है, और वो अगर शायरी हो तो फिर और क्या बात है। ये डायरेक्ट जो है दूसरी जो मजामीन है वो जो है दिमाग से स्कैन हो करके दिल तक पहुंचती है, और ये उर्दू जो है, उर्दू हुआ कोई भी जुबान है जो मादरी जुबान, पूरे दिल डायरेक्ट बराह रास्त होता है, और जज्बात एहसासात सब हमारे दिल से निकलते हैं। तो यही वजह है कि लोग शेर व शायरी की तरफ बहुत आसानी से माइल हो जाते हैं, क्योंकि ये दिल की बात होती है। दिमाग का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता। तो दिल की बात के तर्जुमाने के लिए कुछ रास्ता चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये शेर व शायरी और फिर ये अदब, क्या बोलते हैं, मज़ामीन लिखना और फिक्शन लिखना वगैरह वगैरह ऑटोमेटिक ही होता है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और फिर जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है, उम्र एक ऐसा आता है जहां आप जो है कुछ ऐसे ही महसूस करते हैं कि जहां पर कुछ ऐसे गजल की बातें हो, ये इसको अनअवॉइडेबल एज है, और उस वक्त जो है मैलान तबीयत उस वक्त ऑटोमेटिकली चली जाती है। आप जो है, ये मैंने शान देखी, आपके क्या राय इसके बारे में? क्या यही वजह है कि लोग शेर व शायरी की तरफ ज्यादा माइल हो जाते हैं, या कोई और वजह है? इसको जरा आप वजाहत करें। नहीं, ये सिर्फ शेर व शायरी तक ये बात महदूद नहीं रहती, बल्कि आपके अंदर, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो शौक होता है, हॉबी होती है। क्योंकि अगर जमील मज़ारी ने एक जगह कहा कि बक़दर पैमाना तख़य्युल हर दिल में है सुरूर खुदी का, अगर ना हो ये फरेब पैहम तो दम निकल जाए आदमी का। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि जिस रोज़ इंसान को ये पता चले या एहसास उसके अंदर ये आ जाए, या ऐसे उसे महसूस होने लगा कि मेरी कोई कदर कीमत नहीं है, और तो फिर वो दिन उसका आखिरी दिन होगा, वो एकदम डिप्रेशन की माने का आखिरी स्टेज होगा। इसीलिए ये अपने को, अपने वजूद की तलाश जो है वो हमेशा अपने अंदर जो जिंदा रखना चाहिए। और इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि जब भी आप जो भी काम करें, जो मसरूफियत से थोड़ी देर के लिए इतना वक्त जरूर निकाल लें कि जिसमें जो आपका जो अपना जो आप जिसमें आपका दिल लगता है, या जिस चीज़ का आपके अंदर शौक है, जिस चीज़ का जुनून है, उसके लिए वक्त निकालना ज़रूरी है। तो ये वो शायरी भी हो सकती है, वो नस्मनिगारी भी हो सकती है, वो क्या कहते हैं और भी दूसरे असनाफ सुखन हैं, या फिर दूसरे जो ज़िंदगी के और भी जो वाबस्ता जो फ़नून हैं वो हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा कि इस हिस्सियत को जो है बरकरार रखना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन में तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वक्त अपने काम के साथ इंसाफ भी करना चाहते हैं, तो आपको जो है आपको जहनी तौर पे जो है, जिस्मानी और जहनी तौर पे जो है सही रखना होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपने आप को रिफ्रेश करें। तो कैसे रिचार्ज या रिफ्रेश करेंगे? तो जो आपकी जो चीज़ जो है, जो आप बहुत क्लोज टू हार्ट है, उस पर जो है
आप तवज्जो दें या कुछ वक्त निकालें और उसको जो बिल्कुल सर, है बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक्चुअली जो मसाइल को री चैनलाइज करना चाहिए, इसको दूसरे खाने में लेकर के फिर इसको ऊपर लाना चाहिए, तब जा करके जो है आदमी बैलेंस कर पाता है, जैसा कि हमारे डॉक्टर वसीम साहब ने कहा। लेकिन आज का दौर इतना डिमांडिंग है, चाहे जॉब के हवाले से कहिए, चाहे कोई भी काम करिए, चाहे बिजनेस के हवाले से कहिए, इतना डिमांडिंग है। तो उसी को शायद मैं किसी शायर ने यूं कहा कि कल मिला वक्त तो जुल्फे तेरी सुलझा दूंगा, आज उलझाऊं जरा वक्त को सुलझाने में। तो एक जो आज के जो दौर के जो तकाजे हैं, उसमें टाइम निकालना भी उतना आसान नहीं है जितना कभी पहले हुआ करता था। जी, अब बिल्कुल। आप सोचे, मैंने देखा, मैं अपनी जिंदगी के बारे में कहूँ या जो कोई भी लोग जो है, कम से जी। कम 12 से 14 घंटा मिनिमम 14 घंटा जी। तो वो उनको देना ही पड़ता है अपने जॉब के हवाले से। फिर उसमें जो है बाकी आप 24 घंटे में से 8 घंटा सोना है, और फिर उसके बाद बाल बच्चे हैं, फिर सामान है। तो ऐसा जो है कर पाना, बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। शायद इसीलिए जो लिखने वाले और जो है साइकोलॉजिस्ट जो है इस बात की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम, देयर मस्ट बी अ बैलेंस। और जो है उसके लिए आपको जो अपनी जो चीज को आप पसंद करते हैं, जिससे आपकी वाबस्तगी है, उसको जरूर जो है उसको मतलब इस्तेमाल करना चाहिए। माशाल्लाह अंजुमान साहब, आपसे बात करके, क्योंकि वक्त जो है थोड़ा ज्यादा हो गया मेरे सामने जी, जी, जी। जो है, तो इसलिए फिर कभी मैं इंशाल्लाह एक खास प्रोग्राम शेरो शायरी के लिए रखूंगा, जो इससे अलग रखूंगा, तब जो है उससे पूरी भरपाई होगी। मैं उम्मीद कर रहा था कि आपके हवाले से आसनसोल से कुछ और लोग जो है शामिल होंगे, तो मैं इत्तेफाक से शायद वो लोग सब मसरूफ हैं। तो बहरकैफ जो है मैसेज तो ये रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचेगी, आप सब तक पहुंचाएंगे। तो आपकी अच्छा। आपकी जिंदगी के हवाले से जो 2-3 बातें सामने आई, मैं उनको कंक्लूडिंग रिमार्क के हैसियत से देख करके इस प्रोग्राम को मैं खत्म करूंगा। आपकी गुफ्तगू के दौरान एक बात सामने में आई कि जो है हर हर आदमी के साथ जिंदगी के अपने मसाइल होते हैं। ये गुर्बत, ये परेशानी तकरीबन ज्यादातर लोगों के साथ लगा हुआ रहता है। उस गुर्बत से, परेशानी से निकल करके आगे की तरफ बढ़ना, यही जो है समझदारी और अक्लमंदी की बात है, और यही दरअसल असल अचीवमेंट है। जैसा कि आपने अपनी जिंदगी के हवाले से बताया, तमाम लोग जो है, जो लोग ये समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम परेशान हैं, हमसे ये नहीं होगा, वगैरह वगैरह, तो आपके सामने मिसाल है कि तमाम ऑड्स, आपने देखा इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन जो है पूरी फैमिली मिल करके किस तरह से जिंदगी को इन लोगों ने जिया, और फिर उसके बाद ये इसी दौरान में उन्होंने मेहनत करी, और मेहनत करके फिर WBCS ऑफिसर हुए। तो ये सब के लिए एक मशअल राह है। इनकी जिंदगी से ये बात तो साबित हो जाती है कि गरीबी जो है हमारे लिए लानत नहीं है, बल्कि यूं कहा जाए कि ये हमारे लिए बाइस रहमत है। जिसको लोग अंग्रेज लोग कहते हैं कि फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, हम तो ये कहते हैं बहशत मुसलमान कि गरीबी जो है लानत नहीं है, बल्कि हमारे नबी की सुन्नत है। और जो है जिसको कहते हैं फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, आप जब नाकाम होते हैं, परेशान होते हैं, तभी जाकर के आप कामयाब होते हैं। आपने कभी देखा होगा 100 मीटर का रेस का दौड़ने वाला, उसका जो है कदम जो है पीछे होता है, और वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तो ये जो है पीछे का जो कदम, उसी बात को की तरफ, उसकी नेगेटिविटी, उसके मसाइल को, वो नेगेटिविटी को ओवरकम करके फिर अपनी जिंदगी में वो आगे की तरफ बढ़ता है। ये सारे मसले जो है सबके साथ है। एक बात आपके जिंदगी से निकल के आई। फिर दूसरी बात, जो सबसे अहम बात जो आपकी जिंदगी का आपने बताया, वो ये है कि कभी कभी गलत फैसले जिंदगी में हो जाते हैं, या लेना पड़ता है, वजह जो भी है, गलत फैसले हो जाते हैं। अब उस गलत फैसले को कैसे जो है आप उसको सही करना है, इसका हुनर आपको आना चाहिए। आप अगर जो है, आप जो अंदर से जो इसकी कोशिश करें, तो आप जरूर कामयाब होंगे। जैसा कि इन्होंने एतराफ भी किया और कामयाब होकर के दिखाया। तो तमाम सामीन की जिंदगी में भी ऐसे मसाइल हैं। हम जो है पूरे रिसोर्सफुल पर्सन नहीं है, कहीं हमें कोई बताने वाला नहीं है, कहीं कोई हमें समझाने वाला नहीं है, कहीं हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। बहुत सारी जो है जो सोशल इश्यूज है, जिसकी वजह से हम जो है कहीं ना कहीं गलत फैसले ले लेते हैं। तो गलत फैसले अगर लिया, तो कम से कम ये तो मालूम हो गया कि भाई ये हमारा रास्ता नहीं है। अब आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता आसान हुआ गया कि आप उसी में पड़े नहीं रहेंगे। आपने फैसला कर लिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, अब जो है आप आगे की तरफ बढ़े, और अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी से हमकिनार किया। फिर उसके बाद जो है आपने अब बहुत सारी बातें नौकरी के हवाले से की
कि एक नौकरी मिली आपको, आप उससे मुतमईन नहीं हुए, फिर आपने आगे बढ़ने की जद्दोजहद जारी रखी। इससे ये पता चलता है कि इंसान को जो पहली कामयाबी मिले, कोई जरूरी नहीं कि वही जगह आपको है, आपको मजीद जद्दोजहद करके अपने अपना मुकाम हासिल करने के लिए कंटिन्यूअस जद्दोजहद जारी रखना चाहिए, और ये आपने करके दिखाया। फिर उसके बाद जो है आपने ये भी बताया कि आपने ये भी बताया कि जो दौरान दौरान ड्यूटी जो है और नौकरी जो है, मुख्तलिफ जगह आपको जाना पड़ा, जहाँ भी बहुत सारे मसाइल हुए, लेकिन आपने उसको बखूबी एक जो है स्मार्टली जो है आपने उसको घर को और बच्चों की जिंदगी को मैनेज किया, और आप जो है आप अपनी अपने इस मैनेजमेंट से आप बेहद खुश हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी किया कि आप न सिर्फ जो है नौकरी करते रहे, अपने जो अंदर जो सलाहियतें हैं, जो जो आपका शौक है, जिसको लोग हॉबी कहते हैं, उसको भी आपने जिंदा रखा। और माशाअल्लाह आज आपका शुमार जो है मगरब बंगाल के बड़े शायर अदीब में आपका शुमार किया जाता है। अल्लाह ताला आपको और भी जिंदगी में कामयाबियां दें, और आपकी जो जिंदगी के वाकयात दूसरों के लिए मशअल राह हो। यही कह करके मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने जो हमारे साथ शामिल हुए, और खासकर अंजुम साहब के आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और जो है ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। आज के दौर में वक्त ही ऐसा है जो किसी के पास नहीं है, लेकिन आपने कम से कम मेरे प्रोग्राम को आपने दिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और जो है आगे आने वाली जिंदगी का आपको और बेहतर अता फरमाए। जो उम्मीद करते हैं कि जो लोग जो है सुने हैं उनको वो भी उससे मुस्तफीज, जो लोग सुन रहे हैं इनके हमारे प्रोग्राम को, वो भी मुस्तफीज होंगे। ये कह करके मैं यहाँ जो है आप लोग से जुदा होना चाहता हूँ, और जो है सबसे पहले मैं